जय मां सरस्वती। ये देखिएगा, टुडे is election, so the part 2 which was just erased either or deleted by my faults or by Java. So especially I came on this election day for my children's betterment. So some definitions today I will teach to you, which was erased by me. So I'm going to start some required definitions. Length of pendulum. I have made this figure here. Now this is the thread, and thread is connected with the bob. Bob is a metal ball. So it means that if mathematically we are going to find out the length of the pendulum, so now the length of the pendulum means the length of the thread or plus the radius of the bob. Is that clear? So now, so simply mathematically length of pendulum is equal to length of thread or plus radius of bob. Bob is a metal ball. So now here now this is a L plus we can say that the R, that is the length of the pendulum. Am I right? This length is of this thread is with your bob, and it is suspended on this point with the rigid support. Rigid support is denoted by capital S, thread, and now this metal ball. So it means now it is very much clear from this mathematical calculation to the length of the thread from the length of thread from the suspension point. This is the suspension point to the center. Of bob is called length of the pendulum. And this is called a point of suspension. Point of suspension या suspension point भी आप कह सकते हैं आपका नाम है। Is it clear? Fine. So now it is denoted by capital and represented by capital. बल्कि इसको यहाँ पे कैपिटल L कर देता हूँ, इसको आपका लेंथ E, तो ज़्यादा बेटर ये होगा आपका नाम देखो दिस ये L पूरी यहाँ तक आपका कर दिया, ये देखो L is equal to आपका L plus R. This smallest thread आपकी हो गई, the length of thread. Is it okay? Fine. इसके बाद now I have to go for the second now oscillations. Oscillations का मतलब बेसिकली आपका क्या हुआ, आपका दैट है वाइब्रेशंस आपका नाम। तो अब इसको भी अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं, मैथमेटिकली का मतलब आपका देखिए ऑसिलेशन जिसको आप कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे, आपका नाम देखो दिस ये इज इक्वल टू वन फ्लो बात को लिखिएगा 1 2 प्लस 1 फ्लो। इज इट क्लियर? या और यू कैन राइट दैट कि 1 फोर्थ आगे एंड प्लस 1 बैक, ये दोनों मिलकर के अगर आपका नाम देखो मिल रहे हैं तो अब जैसे आप कहेंगे ये कैसे, दिस resist support
Now this is the thread which is connected with the bob. Now this is ये इतना आपका रेडियस हो गया. This is bob. No, this is completely यहाँ तक आपका L. तो आपका देखो ना ये लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस ये आपका. इज दैट करेक्ट? फाइन हो गया. अब देखो if B bob means B कर देते हैं. If you are just taking this bob on this point A पॉइंट पे आप बॉब को ले लो ऐसे अपना यहाँ पे होल्ड किया for some time. You have hold it. Now this is known as आपका extreme point. Yeah, extreme position here you can say that extreme position. ये आपका देखो ना when it is staying आपका ना this is called the mean position. When it is not functioning, when it is not working, then mean position. It is also known as आपका central position. It is also known as आपका home position. It is also known as origin. It is also known as equilibrium. Is it clear? EQ and LI BI. This is the equilibrium position में होता है. अब यहाँ आपने होल्ड किया इसको लेके यहाँ आए और उसके बाद आपने क्या किया? You have released it. आपने इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ से आएगा देखो यहाँ होते हुए फिर अगेन जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस आपका देखो ना यहाँ मूव करेगा. सपोज दिस इज द C point is also an extreme position. ये भी आपका देखो आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका आ गया. देखो आपका तो इसका मतलब देखो ये यहाँ से जब ऐसे जाएगा देखो ना ये यूं गया आपका देखो फ्रॉम A B पॉइंट होते हुए नाउ C की तरफ आपका गया तो दिस इज कॉल्ड द टू और ये वापस आपका नाम आएगा देखो आपका नाम दिस इज कॉल्ड द फ्रॉम. तो वन कंप्लीट टू एंड वन कंप्लीट फ्रो यानी कि टू प्लस फ्रो इस इक्वल टू आपका क्या बनेगा? ऑसिलेशन हो जाएगा. इज इट क्लियर? फाइन. तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि वन. अब आप इसके अगर डेफिनेशन के बारे में आप आ रहे हैं नाउ फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या करें वन कंप्लीट टू एंड फ्रो movement of the pendulum bob is called oscillation. Oscillation भी मैं already आपका नाम देखो one complete oscillation. तो एक बार ऐसे ये आधा चक्कर हो गया और फिर आए ये आधा चक्कर तो आधा प्लस आधा इस मिलकर क्या पता है that is the complete. Half and half is one. So now that's the one is आपका oscillation. Is it clear? फाइन. कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे कई लोगों को ये दिक्कत होती है. ये देखो आप इसको ऐसे भी वन ऑसिलेशंस आप करते हैं ऐसे आए देखो ना एक टू आपका बी टू आपका ए आए देखो ए आए और फिर ये आए देखो आपका ना और फिर यहाँ से फिर देखो इस पोजीशन से फिर आप क्या करेंगे फिर यहाँ आ जाओ ये देखिए बी से आप फिर देखो सी आए और फिर आपका यू आ गया देखिए अब ऐसे आए फिर ऐसे आए हाफ 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 ये भी आपका क्या माना जाएगा? दिस इज द ऑसिलेशन आपके कंप्लीट मानी जाएगी आपका नाम. अगर कहने का मतलब क्या हो गया अगर इसको देखो आपका एक बार ये तो आपका आ गया ए बी टू ए एंड ए टू बी और फिर देखिए आपका नाम बी टू सी एंड सी टू बी. अगर ये भी होगा इसको भी आपका कंप्लीट परफेक्ट आपका क्या करेंगे आप वन ऑसिलेशन आपका बना जाएगा आपका नाम. तो मोशन ऑफ द पेंडुलम above from the extreme position
to the next extreme position and again come back on the same extreme position is known as the one complete to and fro movement of the pendulum, that's known as आपका oscillation होगा. ठीक है, क्लियर बताइएगा. फाइन. तो ये आपका इसके बारे में क्या था. थर्ड में आपका है टाइम पीरियड. फिर इसको अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो नाम है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 1 2 और प्लस 1 2 2 का मतलब है आप अगर 2 में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो फॉर 1/4 और प्लस ये देखो टाइम टेकन फॉर 1 बैक. यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो एक पॉइंट पे आप लाए, दिस इज बी है और फिर देखो सी, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन. ये देखो यहाँ से आपने क्या किया, व्हेन यू हैव रिलीज इट, जब आप इसको रिलीज कर देंगे तो ये आपका क्या था 2 हो गया, जिसको आपने क्या बोला 4 बोला. तो ना ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने पे हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग एंड आपका फ्रॉम अगेन बैक तो आपका देखो ना ये फिर आपका फिर ए एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जो आ रहे हैं आपका नाम फ्रॉम ए, एरो देखिए आपका नाम टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू सी एंड अगेन फ्रॉम सी टू ए इज नोन एज आपका टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन फॉर 1/4 प्लस टाइम टेकन फॉर 1/4 प्लस टाइम टेकन फॉर 1 बैक इज नोन एज आपका टाइम पीरियड. इज इट क्लियर? तो अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं इसके लैंग्वेज में आपका देखो ना, तो इसके लाइन में डिफाइन कर द टाइम टेकन, बाय द pendulum bob to make one complete oscillation का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. आपका नाम है वन कंप्लीट वाइब्रेशन भी आपका देखो इज नोन एज time period. Is that clear? The time period is also known as the periodic time. लिखा है periodic time क्यों कि in equal interval of time one oscillation has to be clear या completed आपका हो गया आपका. ठीक है, and it is represented by या denoted by, it is represented by capital T. श्योर है, क्लियर है प्लीज. तो ये फिगर्स के थ्रू भी आप इसको देख लीजिएगा और आप ये कोई जरूरी नहीं देखिए आपका हम टाइम टेकन की बात कर रहे हैं तो ये आपका देखो यहाँ से आपका देखो ना ये बी से ए और ए से बी में जाने में इसको भी आपका देखो 2 और इसको भी आपका फ्लो कहेंगे आप. और देखो फिर अगेन यहाँ पे आया ये गया और फिर देखो यहाँ से आपका ये ऐसे आया और देखो फिर ये यूं है और उसके बाद देखो ये ऐसे आया आपका देखो इट्स रीचिंग टू सी और फिर ये ऐसे आए आपका देखो ना इसको भी आपका कहता है यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो भी आपका क्या कहा जाएगा, इसको टाइम पीरियड कहा जाएगा. एम आई करेक्ट? प्लीज बिल्कुल अंडरस्टैंड करिएगा ना. द नेक्स्ट वन टॉपिक इज स्पेशल नोट लिखा हुआ आपका देखो ऑन द बोर्ड. द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी पोजीशन से, ऐसे कौन से रीजन से, ऐसे कौन से फैक्टर से, ऐसे कौन से इफेक्ट से जो जनरली टाइम पीरियड को आपका क्या करते हैं, आपका नाम इफेक्ट करते हैं, आपका नाम किन पर निर्धारित रहता है, किन पर निर्भर रहता है आपका. तो फर्स्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम और लेंथ ऑफ पेंडुलम का कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ बॉल. क्लियर हो गया? दूसरा acceleration
Only acceleration is known as your small a. When acceleration due to gravity we write आपका नाम which has the value 9.8 meter per second square and it always varies place to place आपका वेरी करता है, वो आपका नाम क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीजें हैं इसमें, this notice now the time period of pendulum doesn't depend on, किस पर नहीं करता है, these are the factor, उन पे वो कारक है इसके, और ये जो कारक नहीं है, मास ऑफ द बॉब के मास पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ना ये नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का आपका बना हुआ है, कौन, विच मटेरियल ऑफ बॉब, लोहे का बना है, पीतल का बना है, चांदी का बना है, सोने का बना है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी चीज आप बना लो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये तीन चीजों पर आपका नाम, ये बिल्कुल भी आपका सिंपल पैटर्न पूरा टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो पहले आई एम जस्ट कमिंग, और तीसरी चीज आपका नाम देखो, दिस इज द कि फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बॉब, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका नाम देखो। तो टाइम पीरियड t is equal to 2 pi, this is a complete root for numerator and denominator, l over the g होता है l, यहाँ पे स्मॉल l लिखेंगे तो थ्रेड आ जाएगा, इसकी गलती मत करिए। तो this is capital L is the length of the pendulum, length of the pendulum means length of thread plus radius of ball आपका होता है, z acceleration due to gravity, pi is what, pi is a constant, t is equal to time period means one oscillations and one oscillation is equal to 1 2 plus 1 flow के लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। पाई इज व्हाट, कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका देखो, दिस इज आई थिंक यू कैन राइट 3.14 और आपका 22/7 मैथमेटिक्स में आजकल वॉल्यूम एंड सरफेस में 10th वाले का 9th वाले का ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। और z इज इक्वल आपका नाम होता है इसका एक्सेलरेशन आपका नाम होता है ड्यू टू ग्रेविटी आपका हो गया, और इसकी जो वैल्यू हम लिखते हैं आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मैंने आपको बोल दिया इट वेरीज प्लेस टू प्लेस आपका नाम होता है। ठीक हो गया, क्लियर है आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये जो फॉर्मूला है ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू, तो नाउ देखिए इट इज आल्सो टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है आपका नाम देखो, दिस इज बिकॉज, अब देखो ये नाउ यू सी you have 1 2 3 4 quantities and if we have to find out z को अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब we must have to know about the time period, we must have to know about the length of the pendulum, and the value of pi is what, that is about 22/7. I said you now in every moment in mathematics कि हमें बहुत ट्रांजैक्शन बहुत परफेक्ट आनी चाहिए। अब कोई अगर इसको कहेगा कैसे करेंगे आपका, आपने लिख तो दिया, तो देखो t इज इक्वल टू 2 पाई आपका देखो रूट l ओवर रूट g, आपने मैथ वाले देखो तो ये रूट g इज इक्वल टू आपका देखो 2 पाई रूट l ओवर आपका देखो t हो जाएगा आपका देखो, दिस इज कॉल्ड बाय
cross multiplication and replacement it's going in place of this, it is coming in place of this. अब आपका ये हो गया. अब कई बार बच्चों के दिमाग में दिया तो रूट में है, तो रूट में तो क्या दिक्कत होगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द मैथमेटिक्स. तो आप यहाँ स्क्वायरिंग ऑफ आप बोथ साइड्स कर दीजिए. स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स तो देखिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स क्या देखा आपने, तो रूट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस इज 2 पाई रूट एल ओवर ये टी का भी स्क्वायर होता है. ये टी का बार बार मैं एल क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल कैपिटल एल होता है, ये ऐसे होगा. तो ना देखो अब ये जी कंप्लीट इस इक्वल आपका देखो 4 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज एल ओवर आपका देखो टी स्क्वायर हो जाएगा. तो जब आपको कैलकुलेशन जी की करनी होगी तो ये आपका देखो ऐसे ओपन हो करके ऐसे आ गया. अब ये कैसे, कई बार बच्चों को हाउ ये कैसे हुआ करेगा, एक्चुअल में आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं रूट जी का स्क्वायर का मतलब आपका क्या होगा कि रूट जी इनटू रूट जी, यू कैन राइट इन द सेम ब्रैकेट. तो व्हेन यू स्क्वायर रूट का मतलब आफ्टर मेकिंग ए पेयर ऑफ टू इट विल कम एक तो ये, या और आप क्या कर सकते हैं रूट जी का स्क्वायर का मतलब this is the square of a column and this square root will be converted into 1 by 2 nth root जिसको ये खल्लास हो गया आपका देखो तब बेस ही आता. तो देख रहे हैं फॉर्मूला में आपका it is also to be used to calculate the value of acceleration due to gravity हो गया आपका. क्लियर हो गया. It can be also used to determine the value of acceleration due to gravity at a place. Now, clear? अब मैं आता हूँ कि नाउ ए. अब आई एम कमिंग ऑन द सेम पॉइंट आपका नाम देखो दिस ए पे आपका नाम देखो आपने बोला था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल आपका नाम देखो दिस इज द पेंडुलम बॉब या पेंडुलम खाली पेंडुलम बॉब भी कह सकते हैं आपका देखो डिपेंड्स ऑन का मतलब देखो फर्स्ट देखो नाउ लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका देखो इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड आपका देखो टाइम पीरियड इसका मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका देखो ये हो गया टाइम पीरियड का आपका देखो तो कैपिटल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, याद रखिएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिव्स यू टू थिंग्स, दो चीजें देते हैं आपका देखो ये राइट साइड पे जो है इफ देखो लेंथ of pendulum is increased, so time period is automatically increased. अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, याद ये भी बढ़ेगा. क्लियर. और दूसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डिक्रीज्ड, अगर ये डिक्रीज करेगा देखो आपका नाम सो टाइम पीरियड विल आल्सो ऑटोमेटिकली नहीं लिखा मैंने, ऑटो लिख दिया डिक्रीज. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब आप इसको कहिए कैसे, हाउ हाउ का मतलब तो देखो आपका नाम देखो दिस इज डब्ल्यूएच फैमिलीज होती हैं, 9 डब्ल्यूएच फैमिलीज होती हैं, याद रखिए. अब अगर देखो इफ एल इज अगर इंक्रीज देखो 4 टाइम्स, अगर आप एल को आप इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स तो देखो मतलब ये टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है आपका देखो ना, तो इसका मतलब आपका क्या होगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो 4 टाइम्स and 4 has a square root 2 तो देखो टी. अगर ये इसका मतलब क्या होगा देखो आपका इफ आपका देखो टाइम सॉरी इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज increased
4 times, then time period आपका देखो is increased by 2 times, 2 times। ये देखिएगा, ये देखिए आपका बिल्कुल क्लियर है आपका देखो इंक्रीज। अब यहीं पे देखो आपका इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स, अगर 1/4 टाइम्स आपका करो तो देखो टी इज ये आपका ये फॉर्मूला है आपका देखो ना, तो डिफरेंट आपका फैक्टर है तो देखो ना ये टी एल की जगह में नाम ये 1/4 हो गया आपका 1/4, तो ना देखो ये तो ये इज इक्वल टू टी इज डायरेक्टली टू 1/4, 1 into 1 हो आपका 4 का क्या है तो 1/4। if L is increased by 1/4 times, if L is increased by 1/4 times, then time period is increase नहीं यार, decrease, then time period is also decrease by 1/2 times, 1/2th time या 1/2 times ये घटा, ये आपका ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। इसी में आप एग्जांपल एक और दे सकते हैं, देखो अगर आपका नाम ये 9 टाइम्स अगर आपका बढ़ेगा तो ये आपका 3 टाइम्स आपका बढ़ेगा, और ये अगर आपका 1/9 टाइम्स घटेगा, डिक्रीज करेगा, लोअर करेगा तो ये आपका 1/3 टाइम्स आपका क्या करेगा, आपका लोअर करेगा। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, अनदर विल also automatically आपका increase या hike करेगा, and one is going to be lower, one is going to be decrease, so now it will also decrease। is it clear? आ गया समझ में? ये तो था आपका कि लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका डिक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि इंक्रीज कर रहा है। व्हेन यू विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब द लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ बॉब आपका आ गया। इज इट क्लियर? देखिए ना लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज। नो डाउट प्लीज, ठीक है। तो दूसरा अब मैं आपका जाता हूँ, आपका नाम देखो दिस इसी के एग्जांपल्स में आपका जाता हूँ। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका नाम, तो उस समय आपका क्या होगा, तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका नाम देखो नहीं, तो इसका एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। किसके एग्जांपल के? when the length of pendulum is increasing, the time period is also increasing। तो now in summer, गर्मियों में आपका नाम देखो दिस इज द क्या होता है कि अ पेंडुलम क्लॉक, अ पेंडुलम क्लॉक आपका नाम देखो रन्स लेट, ये पेंडुलम क्लॉक आपका लेट रन करती है आपका नाम देखो, बिकॉज इन हॉट वेदर, जब बहुत हॉट ही हो गया ना बात, जब बहुत ज्यादा हीट आ गई नहीं आपका नाम देखो, पेंडुलम एक्सपेंस, पेंडुलम आपका क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, and its length increases, इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो इट्स टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीज, टाइम टी कैपिटल टी है तो टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीज, तो आपका नाम इसका टाइम पीरियड भी आपका क्या करेगा, आल्सो इंक्रीज करेगा। नाउ देखो दिस, तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड इंक्रीज इन द टाइम पीरियड, आपका नाम द पेंडुलम स्विंग्स आपका मोर स्लोली, बहुत धीरे चलेगा आपका नाम, एंड क्लॉक loses time, अपने टाइम से थोड़ा लेट चलेगी। अब आपका देखो ये count 3 6 9 1
12 बज रहे हैं, गर्मियों में बिल्कुल मई जून जुलाई जब बहुत ज्यादा लू चल रही होती है आपका नगरी, तो दिस इज द आपका क्या आर हैंड, और ये आपका नाम दिस ये आपका सब कुछ करिए आपका मिनट है मिनट। तो मैं यहाँ पे 12 बजे करके दिखा देता हूँ आपका, देखो ना तो मुझे ये आर हैंड, इसी में दूसरी आपकी आ रही है ब्लू कलर से दिखा, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका दिस इज मिनट है। दिन के 12 बज रहे हैं और आप देखते हैं कि ना यहाँ इसी से आपका नंबर ये आपका एक पेंडुलम आपका नाम सस्पेंशन कर रहा है आपका, देखो ना ये अब ये एक्चुअल में इसकी लेंथ देखिए आपका नाम यहाँ से यहाँ तक आपका नाम यहाँ तक है, टिप तक आपका देखो दिस द टिप, देखो लेकिन जैसे ये आपका थोड़ा सा ये यहाँ तक थी पहले, देखो अब ये थोड़ा सा जैसे ये बढ़ गई आपका, देखो ना ये अब देखो ये यहाँ तक आ गई आपका, देखो दिस ये यहाँ तक आ गया है। तो जब ये आपका क्या करेगा आपका नाम, दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये आपका क्या करेगा इंक्रीज कर दिया, तो व्हेन लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज तो ना दिस इज तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड इज आल्सो इंक्रीज, स्लो से तो आपका नाम इट विल मूव स्लोली, तो आपका देखो स्लोली चलेगी आपका नाम, तो ये आपका इट विल लूज द टाइम, ये अपना समय आपका क्या कर देगी, इट विल लूज इट्स टाइम। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था आपका नाम कि लेंथ ऑफ पेंडुलम में आपका नाम इसका एक एक साथ। इज इट क्लियर? अब आपका देखो दूसरी मैं अभी आपको इसको बताता हूँ। एंड व्हाट वाज द सेकंड फैक्टर, ये देखिए नाउ दिस इज व्हाट वाज द सेकंड फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity में इसी फॉर्मूले को now you can see that आपका देखो this time period is inversely proportional upon आपका देखो this inversely proportional। inversely proportional का मतलब क्या हुआ 1 upon देखो this is 1 मतलब न्यूमरेटर में आपका क्या होगा 1 होगा आपका देखो, और डिनोमिनेटर में आपका देखो now this is inversely proportional to आपका देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में भी दो चीजें होती हैं ना, इफ देखो जैसे रूट जी इज इंक्रीजिंग देन टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग, और जब इफ रूट जी इज डिक्रीजिंग देन टाइम पीरियड इज आपका देखो टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी लिख देता हूं, कैपिटल टी इज इंक्रीजिंग, जस्ट इट्स द रिवर्स। इसमें 1 अपॉन है याद रखिएगा 1 अपॉन। अब आप कहेंगे कैसे, आपका देखो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, तो नाउ देखो इसका मतलब जी अगर आपका मोर होगा आपका नाम देखो दिस इज अगर आपका क्या होगा कि जी द वैल्यू ऑफ जी एट ए प्लेस इज मोर देन टाइम पीरियड इज लेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन द टाइम पीरियड इज मोर। अब आप कहेंगे कैसे, तो नाउ इफ जी इज increase 4 times बोला मैंने, देखो आपका नाम आपका 4 times कैसे, तो देखो t is directly proportional indirectly proportional to यानी inversely proportional to, in place of g you will write it as 4, g is equal to 4 हो गया, तो रूट है तो रूट में g is equal to root 4 आ जाएगा, मैथ वाले आपका देखो ना is it clear, in place of this आपका देखो, so now when it will come outside of this radical sign which is your square root, तो देखो t is equal to 1 by आपका क्या हो जाएगा, this is 2, 4 has a square root 2 आपका तो ये 4 टाइम्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रिजल्ट आया कि ना if g is increased 4 times
1/4 टाइम्स में निकाल दिया, 1/4 टाइम्स, यानी कि देखो g इज इक्वल टू 1/4, तो देखो रूट g इज इक्वल टू 1/4। इज इट क्लियर? तो ना देखो, तो t इज इक्वल टू ये 1 अपॉन g, तो 1 अपॉन देखो 4 टाइम्स, b में 1/4 टाइम्स, तो देखो ये इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2। तो देखो मैथमेटिक्स में आपका if a is alone and b is over c is alone, so now it can be written as ac over b। ये देखिए मैथ, इसीलिए मैंने बोला मैथ is the mother of science। ये देखिए आपका देखो this is the 2 will go up, तो देखो 2 into 1 upon 1 is equal to देखो 2 हो गया। इसका मतलब देखो ये 1/4 टाइम्स था, तो ये आपका 2 टाइम्स हो गया। तो now if g is decreased by 1/4 times आपका देखो, then time period is increased by आपका देखो 2 times आपका देखो। तो डायरेक्टली में आपका व्हाट डायरेक्टली गिव्स यू the suggestion, one is going to be increased, another is going to be increased, one is going to decrease, another is going to decrease, but in inversely proportional to one, right hand side, the value of the right hand side going to be increased, left is going to be decreased, or if the right hand side value is going to be decreased, left hand side value is going to be increased। is it clear? तो इसका जो आपका एग्जांपल की बात अगर आप करेंगे, आपका नाम देखो दिस now the value of g, small g on moon। what is moon? Moon is a satellite of the earth, आपका नाम देखो this is less, then the value of g in earth, the acceleration due to gravity अर्थ में ज्यादा होता है, मून में आपका कम होता है। आपका नाम देखो, समझ गए आपका क्लियर? so the period to आपका the time period of the same pendulum will be more, so now the time period of same pendulum will be more in moon than अर्थ। अर्थ में कम होगा, मून में ज्यादा होगा टाइम पीरियड। क्यों? कि वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में कम है और अर्थ में आपका ज्यादा है। तो नाउ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो गया टू द टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ पीरियड हो गया, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, और वो आपका ठीक है, वो खाली ओनली √L है, याद रखिएगा प्लीज। थैंक यू। अभी फिर मैं आगे और रह गया थोड़ा सा एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ आपका। एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉल, इट मे बी लेस, इट मे बी मोर। आप ही देखिएगा, आप पढ़ते हैं, आप जितना ज्यादा टाइम पे करेंगे उतना अच्छा बेटर नॉलेज होगा, उतने अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। हालांकि मैंने आपको बोला किसी बच्चे को जज करने के लिए मार्क्स उसका क्राइटेरिया नहीं होता, नॉलेज, डीप नॉलेज, उसका नाम देखो वो द फ्रेगनेंस ऑफ हिज और हर ब्रेन, वो आपका नाम क्राइटेरिया होता है। जो कि एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, बेस्ट परफॉर्मेंस करे, किसी भी कॉम्पिटिटिव आपका जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करे, आइदर दैट इज ए प्री, पोस्ट, इंटरव्यू, जो भी है उसको आपका वो परफेक्ट नॉलेज कहलाती है। ऐसे ही भाई मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हो सकता मैं पास हो जाऊं, हो सकता मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, हो सकता मैं जिंदगी में सफल ही नहीं होऊंगा आपका, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मेरा लिंक सेट करके मैक्सिमम। अगर एम्पलीट्यूड का मतलब आपका अगर मैं मैथ के हिसाब से जाऊं तो आपका देखो ना, तो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इक्वल टू आपका नाम देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of metal ball. मेटल बॉल का मतलब यहाँ पे बॉक्स है मेरा। अब जैसे आप कहेंगे कैसे, देखो इसको मैं यहाँ लेते हैं, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। आप बार बार लिख रहे हैं, आपका नाम देखो, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। बेसिकली ये जो एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन होती है, याद रखिएगा, ये पहले रेशियो प्रोपोर्शन में होती थी। आप कहिए कैसे, देखो A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। तो जब ये ऐसे करते थे, इसका मतलब देखो आपका ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता था। इसका मतलब B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू D होता था। अब आप कहेंगे कैसे, आप खुद इसी को देखिए ना, ये देखो इसका A बाई B रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बार देख रहे हैं, और ये जो प्रोपोर्शनल देख रहे हैं इक्वल टू आपका देखो C बाई D आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इंटू D इस इक्वल टू B इंटू C करते हैं, पहले लेफ्ट जाते फिर राइट जाते हैं, फिर उसके बाद भाई यहाँ पे के हिसाब से आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन का होता है, देखो इसको आगे लिख दीजिएगा, स्वैपिंग कर दीजिएगा इसको, देखो ये आपने स्वैपिंग कर दिया, ये आपका दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है आपका नाम, जो अपनी जगह में which is stagnant, which is स्थिर है, जो आपका नाम standing, the bob is standing here, बिल्कुल शांत है, it is silent। आपका देखना इधर आएगा तो जब आप रिलीज करेंगे तो वायलेंट हो जाएगा ना, it will be violent। तो आपका नाम देखो इसका मतलब ये जो बी ए साइड है आपका देखो यहाँ बी ए साइड जो आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड ऑफ बॉब है आपका देखो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट ये यहाँ, ये तो आपका देखो यहाँ पे ये बी बॉब यहाँ पे आपका देखो, ये इधर भी हो सकती है आपका देखो, इससे ये डिस्टेंस देखो ये ज्यादा है ना, ये आर्च आपका ज्यादा दिख रहा है ना, तो मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये बी है, ये यहाँ पे ये यहाँ भी आ सकता है देखो आपका नाम, तो उस समय ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपका देखो दिस। तो वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेटल बॉब, ये आपका नाम इट मे बी आपका ये लेस भी हो सकती है आपका नाम देखो, और आपका नाम ये मोर भी हो सकती है। इन पोजीशंस को देख लीजिएगा, यही पोजीशंस आपका नाम ये इधर भी जा सकती है। C is also the extreme position EP, या तो ये और आपका देखो ना BC, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका नाम बॉब है आपका नाम देखो दिस। तो ये उस समय जब ये इधर जाएगा, ये आपका मैक्सिमम आपका व्हाट विल बी, इट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी द मैक्सिमम DIS डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है। क्लियर हो गया, फाइन। आपका देखो ना पोजीशंस को आपने देख लिया, तो ना अब इसको जो डिफाइन करेंगे आपका नाम, जो इसकी डेफिनेशन होगी आपका नाम देखो दिस इज द एस द पेंडुलम स्विंग्स। जैसे झूला होता है, झूला अपना झूलता है आपका ना, तो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ जाता है आपका ना, उसको जितना आप खींच करके ले जाएंगे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। व्हेन यू रिलीज, तो जितना आपका मीन पोजीशन से वहां तक लाए थे आप उसको झूला खींच करके, वो आपका व्हेन यू लीव इट आपका ना द मैक्सिमम आपका फ्रॉम मीन पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम B to A, B to C जाएगा। इज इट क्लियर? एज द पेंडुलम आपका ना देखो दिस इज ऑसिलेट्स, या स्विंग आप लिखेंगे आपका ना देखो ये टू एंड फ्रो, जितना भी ये आप ये फोर्थ एंड बैक जाएगा, द maximum displacement of the bob from its central position या mean position या home position या equilibrium position आपका नाम देखो दिस इज on either side
is called amplitude. Is it clear? Fine. जैसे आप कहते हैं जैपलिन थ्रो होता है, किसी भी चीज में आपका मैग्नेट, आपका हाई जंप आप करते हैं, जो जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगा वो फर्स्ट आएगा। जैपलिन थ्रो करते हैं आप, जैपलिन में जितना ज्यादा दूर फेंकेगा, इफ यू आर थ्रोइंग ए जैपलिन, आपका नाम दैट्स डिपेंड अपॉन योर एनर्जी भी होगा, एंथुसिज्म भी होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, सारी चीजें, पोजीशन भी वहां पे शो करेगा। जिसने सबसे ज्यादा फेंका, व्हिच हैव थ्रो द मैक्सिमम डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड या मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैं आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्जांपल आपका दे रहा हूँ, तो मेरा एम्पलीट्यूड भी आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। माय एम्पलीट्यूड विल बी मोर आपका। तो आइदर ऑन एनी साइड when it is going to be travel, the maximum distance, maximum displacement on either side of the box is known as your amplitude. Fine. आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप जिंदगी में अच्छे सक्सेस होते हैं, इसका मतलब भी आपका क्या हो गया, आपका एम्पलीट्यूड अच्छा था, आपकी सोच अच्छी थी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, आपकी हार्डवर्क अच्छी थी, आपका उठने का तरीका अच्छा था, आप सुबह उठते थे, आप फ्रेश होते थे, ऑल द एक्टिविटीज इज अकॉर्डिंग टू योर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे स्कूल जाना, टाइम पे टीवी देखना, टाइम पे मोबाइल चलाना, टाइम पे पेरेंट्स का कहना मत मानना। पेरेंट्स का कहना हमेशा ही मानना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा कोई भी नहीं होता है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है आपका नाम? तो जब भी फ्रीक्वेंसी की बात हम करेंगे, आपका याद रखिएगा, ये इट विल टेल मी, या इट विल टेल अस, या इट विल टेल टू द होल पब्लिक, टू द होल स्टूडेंट्स आपका नाम ऑफ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल आपका नाम, अब्रॉड आपका नाम देखो, दिस इज टेल अस द रेट एट विच सिंपल pendulum is making vibration या strings या oscillations। ये देखिए रेट का मतलब ही आपका नाम टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। अगर आप फिजिक्स में एक चैप्टर अभी आप देखो ना, हुआ क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम पीरियड था आपका नाम, तो देख लीजिए आपका टाइम ही रेट देता है आपका नाम, देखो दिस इज इट क्लियर? तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय द सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकंड। अब आप देखो, जैसे ये मैंने इसीलिए, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इरेज्ड इट, आई हैव नॉट डिलीटेड इट, मैंने इसको रब नहीं किया, उसका मतलब ये क्या था, देखो जैसे ये आपका बी पोजीशन थी, ये आपका देखो ए पोजीशन है, ये आपका देखो सी पोजीशन है, ठीक है ना? यहाँ से आपका ये आपका देखा मेन पोजीशन थी, ये आपका देखो एक्सट्रीम पोजीशन थी, एक्सट्रीम, मतलब मैंने अभी इसको सीधा बना दिया आपका, वैसे एक्चुअल में ये आपका नाम देखो जैसा, तो हम सिंपल बात करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आप लाए इसको, एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन यहाँ पे था आपका बी सेंटर, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पता चला एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे लाए आप इसको, वैसे कई चीजें हैं, देखिए आपका नाम याद रखिएगा। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जैसे आपने मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई आपका नाम, जैसे जैसे ये ऊपर को बढ़ते जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल भी आपका नाम क्या होगा, मिनिमम, और पोटेंशियल, और जैसे आप इसको रिलीज करेंगे आपका देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है धीरे धीरे बाय एंड बाय इट विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन इट विल रीच एट द बी पॉइंट, हु बॉब, to the maximum kinetic energy it has। हाइट पे आपका मैक्सिमम क्या होती है, हाइट पे आपका हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आपका मतलब ये एक बार मैंने आपको रिमाइंड कराया। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका रेट एट विच सिंपल पेंडुलम इज मेकिंग ऑसिलेशन, इसका मतलब देखो ये आपने क्या बोला, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब आपका क्या होता है ना, देखो इसका मतलब A to C और प्लस C to A, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका 1/4 आपका हो गया प्लस 1 बैक, when you will release it, तो
now it will reach to, now this is C point, that is one complete fourth. When again it is coming back to this A position, it is, that is one back. तो वन बैक और वन फोर्थ जब मिलते हैं तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और इसी के लिए आपका नाम दो, अगर ये 1 सेकेंड में हो रहा था दोनों, इन 1 सेकेंड, अगर ये मतलब जो इसका टाइम पीरियड आपका नाम दो, दिस इज आपका 1 सेकेंड में आपका नाम, अगर ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 1 सेकेंड में, टाइम देखो, टाइम क्या है, 1 सेकेंड में अगर कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, दैट टर्म इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है ना? तो ना इसका मतलब जो डेफिनेशन आपकी हो गई ना, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब भी मैं कंप्लीट लिख देता हूं, the number of complete oscillations upon other word made by pendulum bob in 1 second, in 1 second is called its frequency। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा टाइम पीरियड पे आपका निर्भर करती है। टाइम जब आ गया तो देख लीजिएगा रेट हो गया आपका, इज इट क्लियर? फाइन, क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के कई मतलब है आपका, देखो ना, फ्रीक्वेंसी जैसे कोई आपके शहर में नया आदमी आता है आपका नाम, देखो दिल्ली से आ रहा है या मुंबई से, आपने कहा सुबह के 5 बजे हम पहुंचेंगे, तो यार ये बताइए आपके घर आने के लिए ऑटो मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा, कि मतलब फ्रीक्वेंटली मूवमेंट है रिक्शा ऑटो की, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका समय के साथ आपका लगातार चलती रहती है, वो टाइम है ना, टाइम के साथ चल रही है ना, दैट इज इज दैट क्लियर? देखो, एंड इट्स एसआई यूनिट आपका नाम, ये इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हाँ, इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय एच जेड। एच जेड, ये जेड है, कैपिटल नहीं, स्मॉल है। अब आप थोड़ा सा रेडियो का जब जमाना था आपका ना, देखो अभी भी ऐसा टीवी का जमाना, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है, रेडियो में ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। अब आप इतने हर्ट्ज पर या इतने मेगा हर्ट्ज पर अब आप ये गाना सुनो, कई लोगों को आप पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, मैं रेडियो लगा रहा हूँ। अरे रेडियो लगा रहे हो क्या, पेड़ थोड़ना जो आप रेडियो लगा रहे हो? इसका मतलब हो गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो विच यू आर मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। जब दोनों मैच करने लग जाएगा, आपका सिग्नल, आपकी कनेक्टिविटी आ जाएगी, तो आपका नाम, आपका रेडियो चलने लग जाएगा। आइदर यू आर हियरिंग द न्यूज, द एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, आपका नाम छोटा भीम वगैरह भी आपका जनरली आपका क्या, इट यूज्ड टू कम ऑन रेडियो ऑल्सो। बस रेडियो का मतलब आपका क्या होगा, ऑडियो, इसीलिए कहते हैं उसको। देखो वीडियो, जब उसी चीज को आप देखते हैं स्क्रीन पे, तो दैट इज द वीडियो डिस्प्ले। डिस्प्ले भी आप देख रहे हो उसका ना, लेकिन वहां पे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो देख नहीं रहे, दैट इज द ऑडियो आपका। आप समझ गए ना? तो उस समय ये आपका फ्रीक्वेंसीज को मैच करते हैं आपका नाम, तो आपका कनेक्टिविटी आपकी हो जाए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज है, अगर एक टू, अगर देखो एक टू, अगर एक टू और एक फ्रो आपका हो रहा है वन कंप्लीट, और ये 1 सेकेंड में अगर हो रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर इसको फिजिक्स के हिसाब से देखें तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 कंप्लीट ऑसिलेशन ओवर, अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर 1 सेकेंड में होता है, उसको 1 हर्ट्ज कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट मैं आपको और दे देता हूँ, अगर सपोज के लिए अब आपका देखो
बार देखो, आपने एक बार यूं आए, देखो ए टू सी आपका, देखो फिर आपका देखो ये आए सी से आपका देखो, और फिर आपका देखो फिर आप यानी कि यहाँ से ए से फिर सी में गए और फिर सी से आपका देखो ए पे आए। इसका मतलब अगर दो ऑसिलेशंस को लेने के लिए भी अगर आपका 1 सेकेंड लगा, if two oscillations are completed in 1 second, इसका मतलब क्या हो गया, याद रखिएगा, if the simple pendulum makes आपका 2 आपका oscillations in 1 second, it means its frequency will be 2 hertz। आप समझिए, यानी कि अगर आपका ना 2 complete oscillations are made in आपका 1 second, इसका मतलब therefore frequency will be 2 hertz। क्लियर हो? अगर सपोज के लिए आपका देखना ये आपका, फिर अगर सपोज के लिए ये देखो ए टू सी गया, ए टू सी गया, अगेन इट इज कमिंग बैक आपका देखो सी टू ए आपका, तो देखो वन ऑसिलेशन वन ऑसिलेशन वन ऑसिलेशन, these three oscillations are completed in 1 second, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मिल गया आपका क्या हो जाएगी 3 हर्ट्ज। why? because in 1 second 3 complete oscillation has to be done आपका हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है बताइएगा आपका ना। देखो अब इसमें फ्रीक्वेंसी इज अब देखो नाउ फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय किस, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ आपका ये होता है ना। देखो दिस इन सम बुक्स आपका फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय, कुछ बुक्स में आपका जो है फ्रीक्वेंसी is denoted by आपका नाम देखिए, this is new, this is new कहते हैं इसको, आपका नाम देखो this is। क्लियर हो गया सर? तो t seconds pendulum makes one oscillation, in 1 second pendulum will make 1/t। इससे जो अब आपका रिजल्ट बेसिकली आया, रिजल्ट हम तो कंक्लूजन की बात करेंगे, जो आपने इतना पढ़ा आपका देखो मींस द टाइम टेकन by the pendulum to make one oscillation is called as time period। suppose the time period of a simple pendulum is t second, तो देखो इसका मतलब in t second, in t second आपका क्या हो गया, pendulum makes कितना one oscillation। कोई शक है आपका? देखो ना इसका मतलब आपका अब क्या हो जाएगा, सो इन 1 सेकेंड आपका 1 सेकेंड में आपका क्या पेंडुलम विल मेक वन अपॉन टी ऑसिलेशंस, वन अपॉन टी ऑसिलेशन। एम आई राइट? तो नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब सिंपली frequency of pendulum is 1 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया ये 1/t है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। इसका मतलब f is equal to 1/t, 1/t। इज इट क्लियर? तो f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, और t मींस टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? तो ना अब इसी में एक स्पेशल नोट आपका, कहां पे लिखो कहां पे लिखो कहां पे लिखो, अभी आपका यहीं पे लिख देता हूं। आई एम जस्ट राइटिंग द लास्ट स्पेशल notes of these definition is आपका नाम देखो special note, if I या V, I तो मैं जा नहीं सकता हूं,
मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट का ही आपका ना देखो, वही लोग जाते हैं जो फ्री स्पेसेस में जाते हैं। पर इफ वी टेक सिंपल पेंडुलम है, याद रखिएगा, ये आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, आपका नाम देखो दिस, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम टू ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब जहां पे जीरो ग्रेविटी होती है, जहां पे ग्रेविटी आपकी क्या होती है, जीरो होती है, आपका नाम देखो दिस, देन इट विल नॉट मेक एनी ऑसिलेशन। वहां पे आपका याद रखेगा ऑसिलेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? वाई वाई क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन ये उठता है आपका नजर, बिकॉज देयर विल बी नो रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी, जो विच कीप्स, जो रखती है आपको, मदद करती है आपका देखो, कीप द सिंपल पेंडुलम, एसपी का मतलब सिंपल पेंडुलम आपका ऑसिलेटिंग। ये जो आप बॉब देख रहे हैं ना, इस बॉब में आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जब रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा तभी ये ऑसिलेट करेगा। अगर रीफोर्स आपका आपका रीफोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा तो आपका नाम ये मूव ही नहीं करेगा, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नहीं करेगा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation of simple pendulum in a gravity free space, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब जहां पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है, अपना फ्री स्पेस विल बी आल्सो जीरो। वहां पर ऑसिलेशन ही नहीं होगी, आपका नाम देखो जैसे उसमें ऑसिलेशन ही नहीं होगी, आपका नाम देखो। तो ये 5 डेफिनेशंस थे। 5 डेफिनेशन में आपने लेंथ ऑफ पेंडुलम पढ़ा, ऑसिलेशन पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा। टाइम पीरियड में आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा टी, टी इज इक्वल टू आपका 2 पाई इंटू रूट एल ओवर रूट जी, या कंप्लीट रूट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैपिटल एल और कैपिटल जी भी आ गए। जब कैपिटल एल न्यूमरेटर में होगा आपका नाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रूट जी आपका नाम डिनोमिनेटर में है तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा। उसमें आपको बताया सारी चीजें। और तो देखो ये तो इट इज डिपेंड अपॉन, मैं आज इलेक्शन है, आज इलेक्शन के दिन भी मैंने आधा शटर गिरा करके जो है आपका ये जो चैप्टर में आपका जो पार्ट 2 था, आई ओनली केम टू कंप्लीट दिस पार्ट। I believe that आपका नाम दे for just my efforts, when all the centers, all the coaching centers, all the institutions are closed, I am just making this video for the intelligent, the studious students apna. So please see these videos, share these videos. Now just press the bell icon by which the notification, the next notifications, yeah, the next video will reach to you very easy conveniently to you. And please subscribe, please share, please like, and please give your remarkable and outstanding now these comments which can lift my position in the society now. Thank you very much. God bless you.